अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में और इट्स काइंड्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस। देखो बेटा, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस. One thing is important that a sentence must have at least one subject and one predicate. There are three kinds of sentences: simple sentences, compound sentences, and complex sentence. Today we will talk about simple sentence. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है इसकी सिंपल डेफिनेशन है. सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. देखो बेटा, जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. एंड यू शुड नो दैट a simple sentence is also called an independent clause. Here I will tell you people what's an independent clause. Actually, an independent clause is a clause that has its own independent existence and that gives us a complete meaning by itself. इसको इंडिपेंडेंट क्लास हमें पूरी मीनिंग देता है. इसको इट डज नॉट नीड एनी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू गिव ए कंप्लीट मीनिंग. सो ए सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास. देखो बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स मैंने लिखी है. I am a teacher. Here this is subject and this is verb. This whole is a simple sentence because it has a subject and verb and it gives us a complete sense. Okay, another example: she took a cab to the airport. Here this is subject and took is verb. Similarly, we are having pizza for dinner. We subject or having verb, pizza for dinner. This is a simple sentence. Other examples are water freezes at 0 degrees Celsius. This is a simple sentence. It is also called an independent clause. It gives us a, because it has its own independent existence. It has a subject and verb combination. So this gives us a complete meaning. This is a simple sentence. Other example: I love my new pets. Okay. Does he play tennis? दिस इज ऑल्सो ए सिंपल सेंटेंस. देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है ए सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास. यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट क्लास. एन इंडिपेंडेंट क्लास गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग. इट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए दैट व्हाट इज़ ए क्लास. यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्लास. आपको जो मैंने आपको बोला दैट सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं, लेकिन यू पीपल शुड नो दैट व्हाट इज़ ए क्लास. देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है ए क्लास इज़ ए ग्रुपिंग वर्ड इन इंग्लिश दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो जो क्लासेस होते हैं दे हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड बिसाइड्स दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ sentences. And there are these classes are divided into two important types. Here independent class जिसके बारे में आपको बोला, it's also called main class. यहाँ से dependent class को also it's also called subordinate class. फिर इसके parts है, इसके portions है, ये तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके बारे में बात करेंगे. लेकिन फर्स्ट यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ ए क्लास, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड व्हाट इज़ ए डिपेंडेंट क्लास. देखो बेटा, इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बताया दैट independent clause is actually a complete sentence by itself. It does not need any other clause for its existence. For example, you may sit. Here you, this is subject, and sit, this is verb. तो similarly जो dependent clause है, it also has a subject verb combination. because जो clause है तो उसका basic point ये है कि that it must it should have a subject and verb combination. So dependent clause it also has a subject and verb combination, but it does not give us a complete thought by itself. It is dependent on independent clause for a complete thought. यहाँ पे देखो बेटा, wherever you like, this is a dependent clause. देखो बेटा, यहाँ पे incomplete meaning दे रहा है ये sentence. ये complete sentence नहीं है जब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं. किसके साथ? independent clause के साथ. यहाँ से मैं उठाऊंगी you may sit. देखो बेटा, you may sit, यहाँ से ये portion wherever you like. This is independent clause and this portion is dependent clause because it does not give us a complete thought by itself. It's dependent on independent clause for a complete thought. So here the entire thought is complete
विद वन इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बोला क्लास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में आपको मैंने बोला दैट सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास, तो इसीलिए आपको ये भी पता होनी चाहिए दैट व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पे समझाया दैट इंडिपेंडेंट क्लास is that class which has a subject verb combination, but it gives us a complete meaning, it gives us a complete thought. It does not need other part of a sentence, other part of sentence to give a complete thought. तो ये आपको मैंने बताया। इंशाल्लाह रहमान कल हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटेंस एंड इट्स टाइप सिंपल सेंटेंस। दिस मीन्स दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट आर इट्स काइंड्स एंड व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। तो ये भी आपको मैंने बेटा बोला कि सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।